ਹੈਲੋ एवरीवन वेलकम बैक टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ डायरेक्ट मैथड। डे 7 है आज अपना, ठीक है। सो डायरेक्ट मैथड जो है अपना टॉपिक है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਫਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਆਫਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ डायरेक्ट मैथड, सिंपल जा टॉपिक है, बड़ा ईजी जा। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ। ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਜਾਂ ਰੀਫਾਰਮਡ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਿਫਾਰਮਡ ਮੈਥਡ। ਚਲੋ ਓਰੀਜਿਨ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਇਨ ਫਰਾਂਸ, ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਬੇਸਡ ਇਨ ਜਰਮਨੀ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਮ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ GTM ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਟੂ ਸਟੈਪ ਮਤਲਬ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਰ ਆਈਡੀਆ ਮਤਲਬ समझ जाओ कि द फॉरेन लैंग्वेज शुड बी लर्न इन द सेम वे एज चाइल्ड लर्नस देयर मदर टंग थ्रू लिसनिंग स्पीकिंग फर्स्ट बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। कहने का मतलब जी है कि सेम तरीके दे विच ही बच्चे नूं जिहड़ी है कि लैंग्वेज करवाई जाती है जिवें कि उहदी मदर टंग हुंदी आ, ठीक है। पहला की कर हो जाती है लिसनिंग एंड स्पीकिंग हो जाती है, एंड उस तो बाद अपना जिहड़ी है चीज़ां जिहड़ियां बददियां ने वो किहदे च बददियां ने कि रीडिंग एंड राइटिंग दे विच। आई होप तुहानूं ये चीज़ां समझ आ रही होणगियां। सो ये अपने स्टार्टिंग दे कुछ चीज़ां नेगियां। हुण आपां इहदी गल कर लैंदे मेन प्रिंसीपल्स या इहदे फीचर्स दे बारे। सो पहला जिहड़ा अपना आंदा गा वो की आंदा गा नो ट्रांसलेशन। जिवें कि मैं तुहानूं पहले ही दस चुकी हाँ, डायरैक्ट मैथड एक ऐसा मैथड है जिहदे विच ट्रांसलेशन नहीं करवाई जाती हैगी। सिंपल जो भी सेंटेंस है उन्होंने उसी सेंटेंस या जो भी लैंग्वेज है उन्होंने उसी लैंग्वेज दे विच की कीता जांदा गा, पढ़ाया जांदा गा, ठीक है। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश दे विच, अगर हिंदी है तो हिंदी दे विच। स्टूडेंट अंडरस्टैंड मीनिंग्स डायरैक्टली थ्रू द ऑब्जेक्ट्स एक्शन एंड कॉन्सैप्ट। कहने का मतलब कि ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ने वो अपने आप अंडरस्टैंड करते हैं कि मीनिंग्स ਨੂੰ अंडरस्टैंड करते हैं किवें बाय द एक्शनस ऑब्जेक्ट या फिर कॉन्टेक्स्ट। ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता बच्चा दे लिए, बट ठीक है ना, क्योंकि डायरैक्ट मैथड है तो फिर ये चीज़ तो होगी, राइट। सो नेक्स्ट आ जाता गा लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ द टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है ना वो टारगेट लैंग्वेज की ही दी जाती है, जिमें कि इंग्लिश वाइल टीचिंग इंग्लिश, जिमें कि मैं तुहानूं पहला दस चुकी हाँ, जो भी टारगेट लैंग्वेज दी गई होंदी आ वो सेम ही लैंग्वेज दे विच सेम ही की कहंदे नेगे भाषा दे विच पढ़ाई जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ यूनिट ऑफ टीचिंग, ठीक है। यूनिट ऑफ टीचिंग की द सेंटेंस नॉट द इंडिविजुअल वर्ड। कहना मतलब कि जो सेंटेंस है वो अपने आप दे विच की है, वो अपने आप दे विच टीचिंग है, की बोलते
यूनिट ऑफ टीचिंग है या बेसिक यूनिट है। जिवें आपां ने कल वाली क्लास दे विच पढ़िया सीगा GTM का जिहड़ा बेसिक पॉइंट है या बेसिक यूनिट जो है वो की अपने आप दे विच वर्ड है, सेम उवें ही डायरैक्ट मैथड का जिहड़ा अपना क्या कहते हैं यूनिट है वो अपने आप की है सेंटेंस है। ठीक है, सो ये भी क्वेश्चंस बनते नेगे, सो ये चीज़ का ध्यान रखियो। नैक्सट आ जाता है मैथड यूज्ड। ठीक है, मैथड किमें यूज किया जाता है, यूज किया जाता इंडक्टिवली, इंडक्टिव मैथड। ठीक है, ग्रामर रूल्स आर डिस्कवर्ड बाय स्टूडेंट्स थ्रू एग्जाम्पल्स नॉट टॉट डायरैक्टली। कहने का भाव कि जिमें कि आप प्रीवियस क्लास के पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास के आप पढ़ चुके हैं कि ਜਿਹੜੇ डिडक्टिव मैथड और इनडिडक्टिव मैथड बारे है ना। डिडक्टिव मैथड की होंगे, डिडक्टिव मैथड जिहदे विच पहला रूल्स पढ़ाए जाते हैं, फिर एग्जाम्पल्स होंगे, फिर उन्होंने एक्सरसाइज कराई जाती है, राइट। लेकिन इनडिडक्टिव दे विच की हो जाता है, इनडिडक्टिव दे विच पहला बच्चे को एग्जाम्पल दी जाती है, बच्चा उत्थे से फाइंड आउट करता गा भी की सीन है, किवें आ, किहड़ी चीज़ नाउन है या किहड़ा चीज़ हेल्पिंग वर्ब है, राइट। उस तो बाद उन्होंने रूल्स दसे जाते हैं, फिर होर एग्जाम्पल दिते जाते हैं फॉर एक्सरसाइज। ठीक है, सो जिहड़े डायरैक्ट मैथड का जो मैथड है, मतलब जो भी उहदे विच ग्रामर वाला जो भी मैथड है वो किवें हुंदा गा, वो इनडिडक्टिव मैथड हुंदा गा, यानी कि पहला बच्चों को एग्जाम्पल्स दिते जाते हैं एंड उस तो बाद जो बच्चा है अपने आप उस एग्जाम्पल के थ्रू ही ग्रामर को डिस्कवर करता है और एग्जाम्पल्स नूं होर चंगी तरह समझता है। अगे देख दो, अगे लिखा होयागा फोकस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, ओवरऑल स्किल। कहने का भाव कि कल वाली क्लास दे विच की सीगा, जेड़ा अपना GTM सी है ना, इकट्ठे मैं ताही नहीं लेके आई सी क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है, बट चलो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ईजी हो चुका है ना। ये नाल अपनी GTM की भी रिविजन जो है वो हो ही जा रही है। सो कल वाली क्लास के आपने पढ़ा सीगा कि जी GTM है वो अपने आप कि फोकस करते हैं रीडिंग एंड राइटिंग के की है, लिसनिंग और स्पीकिंग के सब तो ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी रीडिंग और राइटिंग का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि करवाया तो जाता है बट इन्ना नहीं, सब तो ज़्यादा फोकस जोड़ा है वो लिसनिंग और स्पीकिंग दे विच करवाया जाता है। ठीक है, ओवरऑल स्किल दे विच जिहड़े आपां गल करते हैं। नैक्सट आ जाता है स्ट्रेस ऑन ऑल स्किल्स। देखा वजन जो है सारे ते दिता जाता है, स्पीकिंग भी आती है, लिसनिंग भी आती है, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, बट स्पीकिंग एंड लिसनिंग जेडे हैगे नेगे ये पहला आते हैं, रीडिंग और राइटिंग दे बाद दे विच आते हैं, पहला लिसनिंग एंड स्पीकिंग ही आते हैं। अगे देखो रियल लाइफ यूजेस, पॉइंट लिखा हुआ है रियल लाइफ यूजेस। वोकैबलरी एंड ग्रामर आर टॉट थ्रू एवरीडे कम्युनिकेशन। जो भी क्लास दे विच वोकैबलरी है या जो भी ग्रामर है क्लास दे विच जो भी पढ़ाई जाती है वो रियल लाइफ तो की हुंदी है कि रिलेट हुंदी है। ठीक है, डेली की जिहड़ी भी कम्युनिकेशन हुंदी है, डेली की जो भी कन्वर्सेशन हुंदी है उन्हां दे रिलेटेड हुंदी है। सो डायरैक्ट स्पीच दे विच ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप तुहानूं चंगी तरह समझ आ गया होगा कि मैं की समझाना चाहनी हाँ। तो इत्थे ये अपने हैगे सीगे मेन प्रिंसीपल। आगे मूव करते हैं, अगे अपने आ जाते हैं कि मैरिट्स। ठीक है, एडवांटेजेस जिन्होंने आप कह दें हैं, थोड़ा पता होने चाहिए कि इन्हों के मैरिट्स के ने और डीमैरिट्स के ने, क्योंकि इन्हों ते ही क्वेश्चंस बनते हैं एक्चुअल दे विच, है ना, कि किसका की ये डीमैरिट है या की ये मैरिट है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। मैरिट्स के सब तो पहला चीज़ आ जाता है मेक्स द क्लास लाइवली एंड नैचुरल। जी क्लास है उन्होंने बहुत नैचुरल तरीके बनाता है। एनकरेज एक्टिविटी पार्टिसिपेशन एंड क्वेश्चन आंसर इंटरैक्शन। कहने का मतलब कि चलती क्लास के किया जाता है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, डाउट्स भी लेते जाते हैं, मतलब चलती क्लास के पूछ सकते हो। ये एक मैरिट है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्रमोट्स स्टूडेंट्स सेल्फ करैक्शन एंड इंडिपेंडेंस। ये बच्चे को सेल्फ करैक्शन करने का भी मौका मिलता है। ठीक है, मतलब वो अपनी गलतियों को खुद सुधारता है। ठीक है, ये बच्चों को मौका मिलता है। अगे देखो टीचिंग इज एक्टिविटी बेस्ड ड्रिल्स, कन्वर्सेशन, डिक्टेशंस, रोल प्ले। ठीक है, जी टीचिंग है ये सारे ते बेस्ड है कि ड्रिल ते कन्वर्सेशंस, डिक्टेशंस एंड रोल प्ले। ठीक है, डेली बेसिस के जी होंगी है कि ये बच्चों को ये बहुत हेल्प करती है। अगे देखो लिखा होगा स्टूडेंट्स लर्न टू थिंक इन द टारगेट लैंग्वेज, इंप्रूव फ्लुएंसी। ठीक है, फ्लुएंसी को इंप्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स जो भी सोच है, ठीक है, वो सारी की सारी जी हैगी वो टारगेट लैंग्वेज से ही होंगे। मतलब अगर इंग्लिश की क्लास है तब बच्चे को इंग्लिश के ही सोचना
ਹੁੰਦਾ है जिहदे नाल वो अपनी जिहड़ी फ्लूएंसी आ उहनूं की करदा गा इंप्रूव करदा गा। ठीक है, अगे पढ़ते हैं। ग्रामर इज टॉट थ्रू यूज नॉट बाय द मेमोराइजिंग रूल्स। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है कि जिहड़ी ग्रामर है वो किवें पढ़ाई जाती है, तो ग्रामर जिहड़ी हैगी आ वो मैमोराइज नहीं करवाई जाती। ठीक है, उहदे यूजेस तो ही दस्सिया जांदा, ना ही उहदे रूल्स करवाए जाते हैं। ग्रामर का जिहड़ा यूज है सेंटेंस दे विच उहदा किवें यूज किया जा सकदा गा, वो चीज़ नूं लैके जिहड़ा है ये कम करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिहड़ी डायरैक्ट मैथड है उहदे विच ग्रामर दा यूसेज ही दसे जाते हैं, उहदे विच उहदे रूल्स वगैरह नहीं दसे जाते, ते ना ही उन्हां नूं ये चीज़ कही जाती है कि रूल्स नूं याद करो, जबकि GTM दे विच ये चीज़ां आ जांदियां ने। अगे बढ़ते हैं। हुण आपां गल कर लैंदे आ इहदे डीमैरिट्स। डीमैरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस। ठीक है, इत्थे लिमिटेशंस लिखा होया, डिसएडवांटेजेस भी हो गई एक तरह की। चलो, नो ट्रांसलेशन हैंस डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स। कहने का मतलब कि ट्रांसलेशंस नहीं होंदियां, है ना। देखो अगर वर्ड जो है, अगर वर्ड दस्या गया, कोई भी वर्ड करा दिता गया, उहदी अगर ट्रांसलेशन की जाती है तो वो हो जा ईजी हो जाता बच्चे नूं अंडरस्टैंड करना। बट डायरैक्ट मैथड दे विच जिहड़े स्टार्टिंग के जिहड़े बच्चे होंदे ने उन्हां दे लई थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता गा कि वो किवें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करन। ठीक है, सो पहला पॉइंट की आ जाता गा नो ट्रांसलेशन, जिहदे विच बच्चे जिहड़े स्टार्टिंग वाले बच्चे ने उन्हां दे लई डिफिकल्ट हो जाता गा। नैक्सट आ जाता गा टाइम कंज्यूमिंग कंपेयर टू अदर मैथड्स। कहने का मतलब है समय बहुत लैंदा है। सीरियसली समय क्यों लैंदा गा, क्योंकि चीज़ां जिहड़ी है ईजिली अंडरस्टैंड नहीं हो पांदियां, है ना। हुण देखो GTM दे विच की सीगा, पहला सेंटेंस नूं पढ़िया गया इंग्लिश दे विच, उस तो बाद उहनूं वर्ड टू वर्ड पंजाबी दे विच करवाया गया या हिंदी दे विच करवाया गया, जिहदे विच की होंदा टाइम सेविंग हो जाती है। बट इहदे विच जो है टाइम बहुत कंज्यूम होंदा, बहुत समय लगदा गा बच्चे नूं अंडरस्टैंड करन दे लई। अगे गल करदे आ ओवर क्राउडेड क्लासेस मेक इंडिविजुअल अटेंशन डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब अगर है ना बच्चे दे, देखो अगर बच्चा 20 तो 25 तक दा है ना, 20 तो 25 तक के बच्चे क्लास के विच हैगे ने, है ना, 20 तो 25, तो वो ईजी हो जाता टीचर के लिए उन्होंने अंडरस्टैंड करवाना, उन्होंने टीच करना। पर ओवर क्राउडेड तो मतलब कि अगर 30 तो बच्चा उपर हो गया तो उन्होंने लिए थोड़ा जिहा डिफिकल्ट हो जाता, थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट हो जाता गा इस डायरैक्ट मैथड नूं कराउण दे लई। ठीक है, फिर वो इंडिविजुअल बच्चे नूं नहीं एक्सप्लेन कर सकते, वो इंडिविजुअल बच्चे नूं सैटिस्फाइड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जिहड़ी इहदा एक की कह सकते हैं डिसएडवांटेज है कि क्लास तो अगर ओवर क्राउडेड है तो उत्थे वो डायरैक्ट मैथड जिहड़ा है यूजफुल नहीं है। अगे देखो नॉट सुटेबल फॉर ऑल लर्नर्स, एग्जाम्पल स्लो लर्नर्स में स्ट्रगल। कहने का मतलब कि इस सारे जिहड़े लर्नर्स ने, या लर्नर्स तो मतलब है कि जो बच्चे ने, ठीक है, उन्हां दे लई यह की है सुटेबल नहीं है। कुछ बच्चे होंदे ने कि स्लो लर्नर्स होंदे ने, है ना, कुछ नूं छेती समझ भी आ जाता, कुछ नूं छेती नहीं भी समझ आता। तो इत्थे जिवें लिखिआ ना कि स्लो लर्नर्स में स्ट्रगल, कहने का मतलब है कि जिहड़े स्लो लर्नर्स ने उन्हां नूं बहुत स्ट्रगल करना पैंदा, उन्हां नूं बहुत देखना पैंदा, समझना पैंदा। ठीक है, सो ये चीज़ हो जाती है। अगे देखो नीड्स अ स्किल्ड एंड फ्लूएंट टीचर। ठीक है, ये भी चीज़ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲੂਐਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਕੱਲੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ एक डायरैक्ट मैथड कराने लिए सही हो। ठीक है, आगे देखो कैन बी एक्सपेंसिव ड्यू टू नीड फॉर एड्स स्मॉल ग्रुप टीचिंग एंड ट्रेन स्टाफ। ठीक है, ये अपने आप दे थोड़ा जा एक्सपेंसिव हो सकता गा, किवें हो सकता गा फॉर टीचिंग एड्स, है ना, स्मॉल ग्रुप टीचिंग या फिर ट्रेन स्टाफ। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, अगर ये चीज़ा नहीं होणगियां तो डायरैक्ट मैथड का कराना बहुत मुश्किल हो जाए। हुण तुहानूं पता ही है कि जिवें अपने जिहड़े अजकल जिहड़े प्राइवेट स्कूल्स ने, प्राइवेट स्कूल दे विच कितना खर्चा हो जाता है ना। स्पेशल टीचर रखा जाता गा इंग्लिश के लिए, जिहदे विच बच्चे नूं पूरा की करते हैं कि पूरा उहदी स्किल्स नूं डेवलप करते हैं ताकि बच्चा जिहड़ा है इंग्लिश फ्लूएंटली बोल सके, राइट। सो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है इस रीजन करके। सो ये अपने की सीगे डीमैरिट सीगे, इहदे डिसएडवांटेजेस सीगे। ठीक है, तो आई होप तुहानूं चंगी तरह समझ आ गया होगा। अगे MCQs ने, सो एक बारी मैं जस्ट दोबारा तो दस दिंदी हाँ कि होंदे आ डायरैक्ट मैथड।
जिदे जिदे ते क्वेश्चन आ सकते हैं कि डायरैक्ट मैथड का दूसरा नाम जिमें नैचुरल या रिफॉर्म्ड, ठीक है। उस तो अलावा की आ सकता गा, अगर डायरैक्ट मैथड की जो आप गल करिए एक किमें पढ़ाया जाता गा है ना, ग्रामर किमें कराई जाती है, तो फिर वो की हो जाएगा इनडिडक्टिव हो जाऊगा, ठीक है। इस तो अलावा ये जोड़े मैरिट्स और डीमैरिट्स से जिमें कि आपने पढ़े थे, ठीक है, वो सारी चीज़ा क्लीयर हो गया। ਇਹਦਾ एक होर चीज़ ਜਿਹੜਾ इंपॉर्टेंट है कि ये फ्रांस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ है ना, लेकिन ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ प्रिंसीपल्स ने सारे ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ। ओके लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है अपने को देखिए ज़रा, ओके द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अबाउट द डायरैक्ट मैथड। ये चीज़ा थोड़िया देखने वालिया ने गया। Emphasize on the oral language, intense speech practice या extensive use of the न्यू लैंग्वेज या फिर ग्रामर रेसिटेशन। देखो ये बार बार अपने पहला भी पढ़िया सीगा कि जी ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड है वो ही बार बार जी है ग्रामर को रिपीट करवाया जाता है, लेकिन डायरैक्ट मैथड के ये चीज़ नहीं होंगी। सो डी ऑप्शन जो है अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दी ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द डायरैक्ट मैथड इज use the native language as means of instruction, use of the target language as a means of instruction, या use of the foreign language as means of the instruction, या फिर minimum use of the target language। देखो ये विच की आना चाहिए गा, ये विच जेड़ा अपना आंसर है वो की हो जाएगा यूज़ ऑफ टारगेट लैंग्वेज एज मीन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सब तो ज़्यादा जी है टारगेट लैंग्वेज नूं ही यूज़ किया जाता गा, और ये कोई ऑप्शन नहीं है। अगे देखो ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन शॉर्टकमिंग ऑफ द डायरैक्ट मैथड इज दैट। चलो ए ऑप्शन आ रहेगा इट रिलीज एम्फोसाइज ऑन फ्लुएंसी, है ना। एक मिनट मैं साइड हो जानी है। चलो पहला चीज़ आ जाता गा कि इट लेज एम्फोसाइज ऑन फ्लुएंसी, द लर्नर्स इज ओवर एक्सपोज्ड टू द complexity of the target language, it improves ample opportunities to the learners to listen to spoken language, या फिर it does not provide ample opportunities to the students to listen to spoken language। देखो जे देखा जाए ना ये शॉर्ट कमिंग जी है, ठीक है, ये चीज़ा तो आदि ही नहीं गया, लेकिन ये सब तो ज़्यादा जी कमी शॉर्ट कमिंग मतलब कि कमी की गल कर रहा है। तो इट डज नॉट प्रोवाइड, भाई लिसन और स्पीकिंग वाला ही तो सीन है ये, ठीक है। तो ये अपने आप की हो गया, हाँ लिसन और शॉर्ट कमिंग यानी कि कमी पूछी जा रही हैगी, राइट। सो ये जोड़ा अपना आंसर आएगा वो की आएगा ऑप्शन नंबर डी सही तो है। इट डज नॉट प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये अपने आप दे सही आंसर दे रहा है। सो डी ऑप्शन जो है अपने आप दे सही आंसर है। अगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दी और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर टू द डायरैक्ट मैथड, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ द डायरैक्ट मैथड। ये जोड़े ऑप्शनस ने अपने को है एम्फोसाइज ऑन द ओरल लैंग्वेज, इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, या फिर इन एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द न्यू लैंग्वेज, या फिर इंटेंसिव रीडिंग प्रैक्टिस। देखो इत्थे जोड़े अपने ऑप्शनस ने ये पूछा गया कि नॉट कॉमन फीचर, तो ये की हो जाएगा इंटेंसिव रीडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है अपना की है करेक्ट आंसर है। आगे देखो डायरैक्ट मैथड एम्फोसाइज, ठीक है, डायरैक्ट मैथड जोड़ा है वो एम्फोसाइज करता है कि देते मदर टंग ते, रूल्स ऑफ ग्रामर ते, ट्रांसलेशन इन हिंदी और डायरैक्ट यूज ऑफ इंग्लिश इन मीनिंग
फुल सिचुएशन। सो 5th क्वेश्चन का जोड़ा आंसर है वो सब तो ज़्यादा एम्फोसाइज कितने करता, देखो मदर टंग ते तो नहीं करता, ना ही वो करदा गा रूल्स ऑफ ग्रामर ते, ना ही वो यूज़ करदा गा ट्रांसलेशन इन हिंदी। सो इहदा जोड़ा डी ऑप्शन जो है ये अपने आप दे विच करैक्ट है, ये सब तो ज़्यादा एम्फोसाइज करदा गा किसते, डायरैक्ट यूज़ ऑफ इंग्लिश इन मीनिंगफुल सिचुएशन। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज डायरेक्ट मेथड वाज मच यूजफुल फॉर, की आ जाएगा नेटिव स्पीकर्स, सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स, फॉरेन स्टूडेंट्स या फिर स्टूडेंट्स विथ लेस एक्सपोजर्स टू नेटिव लैंग्वेज। देखो जे आप इत्थे गल करिए ना भी ये सब तो ज़्यादा यूजफुल किहदे लई है, तो नॉर्मल जी गल है कि ये सब तो ज़्यादा यूजफुल जो है अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लिए थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने भी लैंग्वेज सेम होंगी आ, तो ईजली वो की कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सो इत्थे किहड़ा जिहड़ा अपना ऑप्शन है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरेन स्टूडेंट्स। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, if a student uses a series of monologue interspersed with the exchanges of questions and answer between teacher and pupil, he must be participation of audiolingual method, structure method, direct method या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मैथड। देखो जो है ना बोल चाल वाली भाषा होंगी हैगी, या फिर जो आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो वो सिर्फ एक ही मैथड है, वो किहड़ा, वैसे भी आपने इन्हां दे बारे आपने पढ़ा ही नहीं है, तो रह किहड़ा गया डायरैक्ट मैथड। डायरैक्ट मैथड दे विच ही हुंदा है कि चलती क्लास दे विच जो है टीचर दे नाल बच्चा क्वेश्चन जो है पुट कर पांदा है, टीचर नूं क्वेश्चन जो है वो समझदा है। ठीक है, टीचर तो वो क्वेश्चन नूं समझदा है। अगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दी ओर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिंग्विस्टिक, जैसे पर्सन नेम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरैक्ट मेथड या ऑडियो लिंगुअल मेथड या फिर स्ट्रक्चरल मेथड। जे आप इत्थे गल करिए जिहड़े अपने लिंग्विस्टिक जैस्पर सी, ये जिहड़ा नाम है ये डायरैक्ट मैथड दे नाल की करदा गा, एसोसिएट करदा गा। ठीक है, सो इत्थे अपना डायरैक्ट मैथड जो है आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is not true about direct method। इन्हां दे विचों केड़ा जिहड़ा है डायरैक्ट मैथड का स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। पहला जिहड़ा ऑप्शन आ गया वो की है, स्टूडेंट्स थिंक इन target language and speaking in it, student use the language and do not demonstrate their knowledge about it, या फिर टीचर tries to get students correct themselves when possible, या फिर टीचर tries to develop only writing skills of the students। भाई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ not true वाला, क्योंकि not true पूछा गया ना, ये वाली चीज़ तो होंगी है कि ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ स्पीक करदा गा, ठीक है, लैंग्वेज ਨੂੰ भी की करदा गा, समझदा गा, यूज़ करदा गा, टीचर्स भी उन्होंने की करते सैल्फ करैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ एनकरेज करते हैं। ठीक है, पर इत्थे ਜਿਹੜਾ अपना आंसर आएगा राजे वो आएगा ओ एक मिनट, ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਓਨਲੀ ਦ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ। ਬਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਥੋੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਨਾਓ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल, रुको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट डायरैक्ट मैथड। इत्थे क्वेश्चन पूछा गया कि केड़ी जिहड़ी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है अबाउट किसी डायरैक्ट मैथड दे। स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स नीड टू लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चन एज वेल एज आंसर दैम, या प्रोनाउंसिएशन इज वर्कड आउट एट द एंड ऑफ द लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, या फिर स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल। सो ये अगर पूछा जा रहा है ना कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो राजे इनकरेक्ट स्टेटमेंट की रहूगी ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है वो पहले ही जोर देती है, मतलब स्टार्टिंग तो ही उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिता जाता ना, जो उदों ही वो प्रोनाउंसिएशन पर वर्क करना शुरू कर देती है, ना कि चैप्टर खत्म होने तो बाद। सो जो अपना
सी ऑप्शन है वो अपने आप दे विच की है करेक्ट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is not applicable to the direct method। ठीक है, पूछा जा रहेगा कि ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਡਿਡਕਟਿਵਲੀ, students native language is not used, students are encouraged to communicate in their target language, या question and answer या क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज आर कंडक्टेड। सो ये जोड़े तीन ऑप्शंस ने ना नीचे वाले ये तो अपने आप दे विच सही ने। ठीक है, ये चीज़ां तो होंदियां ही ने। एप्लीकेट किहड़ा नहीं, अप्लाई किहड़ा नहीं करता बई, वो करदा गा ग्रामर इज प्रेजेंटेड डिडक्टिवली। ग्रामर जो है वो डिडक्टिवली नहीं करवाई जाती, इनडिडक्टिवली करवाई जाती है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दी, और द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग activity is not followed in the direct method? Dictation, conversation practice, memorizing of word meanings and rules, या getting students self correct। देखो ये विच जे आपां गल करिए ना कि जे स्टूडेंट दे बारे कि ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਆ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਮੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਵਰਡਸ ਮੀਨਿੰਗਸ ਐਂਡ ਰੂਲਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਗੇ। ਵਿਚ ਮੈਥਡ ਵਾਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਗ੍ਰਾਮਰ ट्रांसलेशन मैथड। चलो ਇਹਦਾ ਤਾਂ सीधे सीधे आंसर है डायरैक्ट मैथड, क्योंकि ये जमी ये अगेंस्ट है, ये ऑपोजिट है। ठीक है, सो ये जोड़ा अपना आंसर है डायरैक्ट मैथड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता गा, चूज द प्रिंसिपल नॉट फॉलोड इन डायरैक्ट मैथड। इन्हां दे विचों जिहड़ा प्रिंसिपल किहड़ा प्रिंसिपल है जिहड़ा नहीं यूज किया जाता। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शंस देख लेना। स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू थिंक इन द टारगेट लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड इन द क्लासरूम, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। अगेन वही चीज़ आ गई, आपने जस्ट पढ़िया ही सीगा है ना कि जी ग्रामर है वो इनडिडक्टिवली पढ़ाई जाती है कि डिडक्टिवली नहीं। सो अपना क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जोड़ा हो जाएगा वो की हो जाएगा अपने आप दे विच सी ऑप्शन जो है अपने आप दे विच करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दी, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट फॉलोड इन द डायरेक्ट मैथड। देखो डेमोस्ट्रेशन एंड विजुअल एड्स, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, या फिर क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज। ओहो ये तो बड़ा सीधा सा आ गया है ना। ये भी सेम वही चीज़ जोड़े स्टूडेंट्स ने वो अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल जा ही क्वेश्चन सीगा, सिंपल जा कॉन्सैप्ट सीगा। सो ये जोड़ा आंसर है वो की हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हो गया जी। अगे बढ़ते हैं। ओके आही सीगे। ठीक है, अज थोड़ी स्पीड दे विच चली हैगी क्लास है ना, फुल ऑन एनर्जी। सो आई होप तुहानूं चंगी तरह समझ आ गया होगा और तो तुहानूं मेरी क्लास भी वधिया लगी होगी। सो मैं यही चाहूँगी कि जिहड़ी मेरी पहला वाली क्लासेस ने वो भी तुसीं देख लो। एक प्लेलिस्ट है पूरी इंग्लिश पैडागॉजी दी जिहदे विच तुहानूं सारे चैप्टर वाइज जिहड़े नेगे तुहानूं टॉपिक्स जोड़े है मिल जाएंगे, प्लस इन्हां दे नाल नाल तुहानूं एक्सरसाइज भी मिलेगी जो कि तुहाडे लिए बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखियो वीडियो नूं लाइक शेयर जरूर करियो। मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच नैक्सट टॉपिक दे नाल। तब तक के लिए धन्यवाद।